السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ عابد اسلم صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے اس ریاست کے اندر ابھی چند سال سے جو ہے امن عافیت کے ساتھ وقت گزر رہا ہے لوگوں کے لیے، اور خاص کر غریبوں کے لیے بلا تفریق مذہب جو ہے تمام کے لیے حکومت کی جانب سے رعایتیں دی جا رہی ہے، مکانات کا انتظام ہو رہا ہے، تعلیم کے لیے اسکالرشپ دی جا رہی ہے اور بہت ساری اسکیمیں آپ نے بتائی۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سرکار آگے بھی چلے اور اس کے لیے تمام ریاست کے تمام ہندو مسلم جتنے بھی کمیونٹی کے لوگ آتے ہیں وہ تمام لوگ جو ہے اس سرکار کا ساتھ دیں تاکہ امن عافیت بحال رہے اور یہاں جو ہے پورے عافیت کے ساتھ جو ہے عوام رہے، یہاں پر ہر طبقے کا آدمی سکون محسوس کرے۔ اور ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ جب بھی جو ہے ایک اچھی سرکار آتی ہے تو حاسدین کی جماعت بھی کھڑی ہو جاتی ہے، جیسا کہ اب بی جے پی اور جے ڈی ایس جو پوری طرح سے تباہ ہو چکی ہے ہماری اس ریاست کے اندر اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، وہ جو ہے اس حکومت کو گرا کر جو ہے بدلہ لینا چاہ رہی ہے۔ ایک اچھی حکومت کو گرا کر خرید و فروخت کے ساتھ پیسوں کے لین دین پر جو ہے ایک اچھی سرکار کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں تمام ریاست کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، وہ جو ہے ہمارے سدھرامیا جی جو ایک اچھی طاقت کے ساتھ جو ہے اس ریاست کو لے کر چل رہے ہیں اور سب کا خیال رکھ رہے ہیں، سب ان کا ساتھ دیں۔ اور خصوصاً کانگریس کے وہ لیڈران جو کانگریس کے نام پر جو ہے حکومت میں آئے ہوئے ہیں، ایسے لیڈران ایسے موقع پر ہمارے وزیر اعلیٰ کے ساتھ رہیں اور ساتھ دیتے رہیں اور ناپاک جو سازشیں ہو رہی ہیں ان سازشوں کو ختم کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اور ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس سرکار کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ ایک اچھی سرکار ہے، کوئی بھی اچھی سرکار ہے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کا ساتھ دینا چاہیے اور ساتھ دینے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دعائیہ اجلاس رکھنے کا مقصد کرناٹک میں پچھلے 1.5 سال سے کانگریس کی حکومت، ایک سیکولر حکومت، اس سیکولر حکومت کے وزیر اعلیٰ جناب سدھرامیا صاحب ایک اچھی حکومت چلا رہے ہیں جس میں اقلیتوں کے لیے، پچھڑے طبقات کے لیے، جو غریب سے غریب تر لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے مختلف فلاحی اور رفاہی اسکیمیں بنا کر اس ریاست کے عوام کو فائدہ پہنچانے والی اگر کوئی سرکار ہے تو وہ کانگریس کی سرکار، جس کے وزیر اعلیٰ جو کرناٹک کے عوام کے ہر دل عزیز لیڈر مانے جاتے ہیں جناب سدھرامیا صاحب۔ پچھلے 1.5 سال میں اس حکومت نے غریبوں کے لیے، بے بس لاچار مجبور لوگوں کے لیے مختلف فلاحی اسکیمیں دی ہیں، جس میں ایک اسکیم کا نام ہے گرہ لکشمی۔ گرہ لکشمی ہر گھر کی خواتین کے لیے، ایک سینئر خواتین کے لیے 2000 روپے اس کے اکاؤنٹ کو پہنچانے کا کام کر رہی ہے۔ یہ سلسلہ 1.5 سال سے چل رہا ہے۔ خواتین اگر گھر سے کہیں باہر جانا ہے، سفر کرنا ہے، کرناٹک کے کسی بھی چپے میں وہ پہنچنا ہے، کسی مندر جانا ہے، کسی درگاہ کو جانا ہے، کسی رشتہ دار کے گھر جانا ہے، تو اسے بس میں مفت سروس ملے گی، ٹکٹ نہیں دینا ہوگا، مفت سفر طے کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ منسٹر جناب رام لنگ ریڈی کی منسٹری میں یہ اسکیم دی گئی ہے۔ اسی طرح کے جے جارج جو انرجی منسٹر ہیں، ان کی منسٹری سے ہر گھر کو 200 یونٹ فری کرنٹ پورے کرناٹک میں تقریباً 2 کروڑ گھروں کو مفت بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ BPL کارڈ رکھنے والے تمام افراد کو
10 किलो चावल हर माह और दीगर अशिया भी दी जा रही है। अगर आपके घर में कोई ग्रेजुएट है जिसके ग्रेजुएशन करने के बाद वो बेकार है, बेरोज़गार है, ऐसे शख्स को 3,000 रुपये उसके अकाउंट को डाला जा रहा है। अगर वो डिप्लोमा होल्डर है तो उसको 1,500 रुपये अकाउंट को डाला जा रहा है। ऐसे फलाही स्कीम चलाने वाली सरकार का नाम सिद्धरामैया की सरकार है। पिछले 2013 में जब सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बने, यहाँ उन्होंने मुख्तलिफ फलाही स्कीमें अक़लियतों को दी। उसमें प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स, ओवरसीज स्कॉलरशिप 17 लाख कर्नाटक के अक़लियतों के बच्चों को उन्होंने स्कॉलरशिप दी। करोड़ों रुपए इस पर खर्च किए गए ताकि मुसलमान बच्चे तालीमी मैदान में आगे बढ़े। इवन यहाँ तक कि इंग्लिश मीडियम 200 स्कूल खोले गए जो मौलाना अबू कलाम आज़ाद के नाम से इस वक्त पूरे कर्नाटक में इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहे हैं। अन्ना भाग्या के साथ शादी भाग्या, जिससे 50,000 रुपये गरीब के घर में शादी होती है, तो उसका वो स्कीम भी जनाब सिद्धरामैया साहब ने दिया। इसके साथ यहाँ मर्द मुजाहिद हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को ये खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए सिद्धरामैया की सरकार ने टीपू जयंती मनाई। इसका सिलसिला कई साल तक चलता रहा। ऐसी स्कीमें बनाकर लोगों तक, गरीबों तक उनका पैसा पहुंचाने का काम कांग्रेस कर रही है। अब इसकी मकबूलियत, इसकी पॉपुलैरिटी, इसके एएस और बीजेपी को देखा नहीं जा रहा है। किसी एक मुद्दे में सिद्धरामैया साहब को फंसाने के लिए मैसूर के मूडा यानी मैसूर डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक साइट का मामला लेकर उन्हें इसमें फंसाकर एक इंक्वायरी कोर्ट से कराई जा रही है, जिसमें लोकायुक्ता को डायरेक्शन दिया गया है कि इसकी पूरी जांच की जाए। इसके साथ साथ मरकज़ी सरकार ईडी को भी यहाँ लागू कर चीफ मिनिस्टर की तौहीन करना चाह रही है। ऐसे मौके पर हम सब की जिम्मेदारी बनती है, हम सबको इस पर तवज्जो देना है, क्योंकि यह अमन व अमान का गहवारा है कर्नाटक, और यहाँ हिंदू मुसलमान भाईचारगी से ज़िंदगी बसर करते आ रहे हैं। जब से सिद्धरामैया की सरकार है, यहाँ जी परमेश्वर को होम मिनिस्टर बनाया गया है। अमन को मेंटेन करने के लिए, पीस को मेंटेन करने के लिए पूरी तवज्जो दी गई है। ऐसे वक्त पर इस सरकार को गिराने के लिए हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके लिए मैंने मौलाना मुताहर सिराजी जो इस इदारे के बानी हैं, ये आपसे मेरी दरख्वास्त ये है, इस वक्त रियासत कर्नाटक में एक सेक्युलर सरकार चल रही है, जिसके महबूब वज़ीर आला जनाब सिद्धरामैया साहब हैं। इस हुकूमत पर कांग्रेस की सरकार, सिद्धरामैया वज़ीर आला है, इसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी.के. शिवकुमार। इसमें मुसलमानों को भी बहुत अच्छी नुमाइंदगी दी गई। पीजेड ज़मीर अहमद साहब को हाउसिंग मिनिस्ट्री दी गई, जिसके ज़रिए गरीबों को पूरे 10-15 साल में एक घर भी नहीं मिला था। उनके वजारत में आने के बाद तकरीबन 30 पर 7,970 पर 9 गरीबों को घर दिए गए, बाकायदा कीली वो घरों में पहुंच चुके। फिर आइंदा 40,000 घर देने का उन्होंने वादा किया है, और माइनॉरिटी वेलफेयर को 3,200 करोड़ का बजट दिया गया। ज़मीर अहमद का कहना है कि तकरीबन 50% बजट एजुकेशन पर खर्च करने का उन्होंने ऐलान किया है। इसके साथ साथ यूटी खादर साहब स्पीकर है, नसीर अहमद साहब वज़ीर आला के सियासी मुशीर ख़ास हैं, और सलीम अहमद चीफ विप है, और रहीम खान हेड मिनिस्टर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरह अक़लियतों के साथ भी बराबर इंसाफ हुआ। अब उनकी सरकार को गिराने के लिए बड़ी पैमाने पर जेडीएस और बीजेपी मिलकर
कोशिश कर रही है कि ये सरकार गिरे, ये सरकार को गिराए, सिद्धरामैया को कुर्सी से उतारे। तो आए मौलाना मुताहर सिराजी साहब को, हम समाजी खिदमत गुजार हैं। इस इदारे का मकसद भी समाजी सेवक है, न सिर्फ नमाज रोज़ा बल्कि दीनी चीज़ें, बल्कि दुनियावी सरगर्मियों में भी हमने हमेशा हिस्सा लिया है। इसके बहुत सारे रिकॉर्डें हमारे पास मौजूद हैं। मैंने मुताहर साहब से गुजारिश की है कि कल सुबह की नमाज के बाद हम सब मिलकर सिद्धरामैया सरकार को बचाने के लिए, उसकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, उसे और हिम्मत, उसके हौसला बढ़ाने के लिए, इस सरकार को बचाने के लिए आप तमाम मासूमों के दरमियान बैठकर हम एक दुआ मांगेंगे। इसका पैगाम पूरे इस वक्त जो है ये एकजुट होकर जो है कांग्रेस के साथ मिलकर काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह राहुल गांधी भी जो है सारे मुल्क के अंदर अमन यात्रा जो निकाल रहे हैं, उससे भी बड़ा फर्क पड़ रहा है और रियासत पूरे मुल्क के अंदर जो है अमन की कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। जो जहर फैलाया गया है बीजेपी और दूसरी तंजीमों की जानिब से, उस जहर को कम करने की उन्होंने कोशिश की है और ख़ासकर हमारी रियासत के अंदर भी उसका खासा असर हुआ है। इसी की वजह से यहाँ कांग्रेस सरकार आई है और इस बेहतरीन सरकार को बचाने के लिए तमाम को दोबारा दरख्वास्त करता हूँ, ये एकजुट होकर, माइनॉरिटी हो और दलित हो या हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, सब एकजुट होकर जो है इस सरकार को बचाने में मदद करें और दुश्मनों की जो साजिशें हैं उसको ख़त्म कराने की पूरी तरह से ताकत लगाकर कोशिश करना चाहिए। और इस वक्त हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस रियासत के अंदर जो है अमन आफियत के फैसले फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत तक़वा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फी दीनिना व दुनियाना व अहलिना व मालिना। अल्लाहुम्मा क़िना बिहलालिका मिन हरामिका व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मूजिबात रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, गुनाहों से दरगुजर फरमा। या अल्लाह कोताहियों लक्ष्यों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हम तमाम को इस मुल्क के अंदर अमन आफियत के साथ, इज्जत के साथ ज़िंदगी बसर करने के रास्ते मुहैया फरमा। या अल्लाह हर किस्म के शुरूर से, फितनों से इस मुल्क की और ख़ासकर इस रियासत की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस वक्त जो बेहतरीन जो है सरकार जो आई हुई है, या अल्लाह इस हुकूमत को के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, या अल्लाह उन साजिश को ख़त्म फरमा। या अल्लाह दुश्मनों की दुश्मनी को ख़त्म फरमा। या अल्लाह अमन आफियत के साथ या अल्लाह इस सरकार को चलाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अमन आफियत के साथ या अल्लाह इसको कायम अतादिर कायम दायम रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो बुराई करने वाले हैं, जो बुराई करने वालों को या अल्लाह ख़त्म फरमा। या अल्लाह दुश्मनों की दुश्मनी को ख़त्म फरमा। खासकर हमारे रियासत के अल्लाह चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जो तमाम के साथ अमन आफियत का के साथ रहना चाहते हैं और उनकी मदद करते हैं, या अल्लाह उनकी खिदमतों को कबूल करते हुए आने वाले फितनों को ख़त्म फरमा। या अल्लाह इस रियासत के अंदर तमाम बरादरान वतन, हिंदू हो, मुस्लिम हो, या अल्लाह अमन के साथ, आफियत के साथ या अल्लाह इस ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगियों को चलाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हर बुराई से हिफाजत फरमा, हर शर से हिफाजत फरमा, हर किस्म की भलाई नसीब फरमा। या अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों जगह के हम तमाम को कामयाबी नसीब फरमा और तमाम को हिदायत से माला माल। Allah
وہ